Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we're going to discuss about the most important issues of the day. So there are three articles that we have to discuss. The first article is very important because it is related to biotechnology part of the science and tech. And particularly if we talk about biotechnology is one of the favorite topic of UPSC. So that's why we have to study in depth what is all about cancer cells and how the body defense system is fighting against them. तो ये article will be very important for pre as well as mains. So make sure you have all the details of this article. Then the second article is all about voters bribe. Recently you might be aware about Maharashtra mein there was election, and before the election, before the announcement of that election, the government started some of the benefit schemes which are providing direct cash benefit to the voters. So some of the people are criticizing government that it is a short term goal achievement and it's a kind of a voter bribes. So we will be talking about the constitutional and legal provisions under which the thing can best suited in. So particularly our discussion will be from the mains perspective. The third article is very important for pre as well as mains. Why? You might be aware about the Ayushman Bharat scheme. It is recently expanded by the government where the coverage for people above 70 age, means the senior citizens, government has expanded that coverage to everyone. So because of that it was in news, but recently it is in news because Delhi government announced that they are in principle ready for overall implementation of the scheme. So we will be going through the detail of this scheme. So it is relevant for pre as well as mains. In GS paper 2, sometime you have to evaluate the scheme. In that context, it is very relevant. Now, let's talk about the first article. The first article, we have to understand our body immune system. So let's talk about this first. Let's say any pathogen enter into our body. Once they enter, the body releases white blood cell and these white blood cell fight against this pathogen and ultimately they eliminate it. मतलब बॉडी के अंदर जब भी कोई बाहर का फॉरेन एंटीजन एंटर करता है या फॉरेन पैथोजन एंटर करता है तो उस केस में हमारी बॉडी एंटीबॉडीज रिलीज करती है सो दैट इस पैथोजन को हम रिमूव कर सकें. अगर इन केस नहीं रिमूव कर पाते तो दैट पैथोजन गोना इफेक्ट द बॉडी नेगेटिवली. और जब तक ये फाइट चलती है तब तक बॉडी के अंदर फीवर जैसी कंडीशंस आपको देखने को मिलती है. मींस फीवर इज समथिंग समवेयर यू कैन रिलेटेड विद द इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स. तो इम्यूनिटी का जो रिस्पॉन्स आता है उसमें फीवर लाइक कंडीशन आपकी होती है. नाउ सेकेंड थिंग जो आपको यहां पे याद रखना है, एक स्टडी पब्लिश हुई. इन दैट स्टडी द नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी सेड कि भाई कोविड-19 पे हमारा जो इम्यून सिस्टम है यानी व्हाइट ब्लड सेल इसमें कुछ फंडामेंटल चेंजेस आए एंड वो अब हेल्प कर रहे हैं कैंसर सेल के स्प्रेड को स्लो करने में. द स्टडी वाज पब्लिश्ड इन अ मेडिकल जर्नल दैट इज क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन एंड इसमें दे सेड कि चेंजेस जो व्हाइट ब्लड सेल में आए हैं इसमें आपके इंड्यूस्ड नॉन क्लासिकल मोनोसाइट्स बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुए. अब ये मोनोसाइट्स होते क्या है या इंड्यूस्ड नॉन क्लासिकल मोनोसाइट्स क्या होते हैं? एक्चुअल में जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, दे आर हैविंग ओनली मोनोसाइट्स. क्या होते हैं उनमें? मोनोसाइट्स ही होते हैं. बट ड्यूरिंग द फाइट ऑफ इन्फेक्शन, मतलब जब वो फाइट करते हैं इन्फेक्शन के साथ, तो इन्फेक्शन को टारगेट करने के लिए आपकी बॉडी इंड्यूस्ड नॉन क्लासिकल मोनोसाइट्स को प्रोड्यूस करती है. एंड यहां पर जैसे ही मोनोसाइट इसके अंदर ट्रांसफॉर्म होते हैं, दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग द किलर सेल एंड किलर सेल आपकी बॉडी में से पैथोजन को रिमूव करते हैं. नाउ द बेसिक फंडा दैट यू हैव टू रिमेंबर हाउ दे ऑपरेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इनके अंदर होते हैं एक CCR2 आपके रिसेप्टर्स. ये रिसेप्टर क्या करते हैं? कैंसर सेल के साथ जाके अटैच होते हैं एंड नाउ दे अट्रैक्ट नेचुरल किलर सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स आके इस कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे. सो दैट्स हाउ दे आर रिड्यूसिंग द स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल. नाउ इफ वी टॉक अबाउट नेचुरल किलर सेल क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये टारगेटेड किलिंग के लिए आप यूज करते हैं. मींस
ये आपके जो भी बॉडी के अंदर अब नॉर्मल सेल्स होंगे, इन अब नॉर्मल सेल जैसे कैंसर सेल, इन सब को ये मारने का काम करते हैं। मतलब किसी भी तरह का पैथोजन, चाहे जैसे पोलियो वायरस की बात करें या इंसेफेलाइटिस की बात करें, कोई भी आपकी बॉडी में पैथोजन आया, उन सबको ये टारगेट करता है और उन सेल्स को ये डिस्ट्रॉय करता है, जो भी आपके फॉरेन सेल होंगे। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये बॉडी के इम्यून सिस्टम का पार्ट है और इम्यून डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब क्या यहां पर आपके कैंसर सेल बिल्कुल ठीक हो जाते हैं? तो देखो, स्पॉन्टेनियस रेमिशन तो नहीं है। हाँ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ केसेस में ये थेरेपी आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। मींस ये पूरी तरह से तो ट्रीटमेंट नहीं कर पाती है, बट ट्रीटमेंट जैसे आपको रेडियोथेरेपी आपने सुना हो, कीमोथेरेपी आपने सुना हो, ये थेरेपीज के कहीं ना कहीं आपको लेनी पड़ेगी। बट यहां पर कुछ हद तक कुछ केसेस में हमने ये देखा है कि बॉडी अपने आप से भी कैंसर सेल को खत्म कर देती है। अब कैसे करती है? जैसे एक एग्जांपल देता हूं, ये न्यूरोब्लास्टोमा एक आपकी बीमारी है। ये बीमारी ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलती है। बच्चों में मतलब अर्ली चाइल्डहुड में, और 90% केसेस में ये अपने आप ही डिसअपीयर हो जाती है कुछ टाइम बाद। अब ये बॉडी के इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक है तो माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट द चाइल्ड माइट सफर द डेथ। तो यहां पर वो आपको देखना पड़ेगा कि ये न्यूरोब्लास्टोमा जैसे अगर हम बात कर रहे हैं तो उस केसेस में इम्यून सिस्टम इफेक्टिवली वर्क कर रहा है, बट मैक्सिमम केसेस में आपको कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। अब चेंजेस जो करते हैं हम, ये आ जाती है आपकी इम्यूनोथेरेपी के अंदर। अब इम्यूनोथेरेपी अलग अलग टाइप की होती है। हम कार्ड के बारे में फ्रीक्वेंटली सुनते रहते हैं, तो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि इस बार प्रीलिम्स में आपको कार्ड थेरेपी के बारे में जैसे पूछ लिया जाए। तो रिमेंबर दिस, ये कैसे ऑपरेट करती है। लेट्स से मैं एक पेशेंट हूं। अब होगा क्या कि मेरे जैसे हाथ से यहां से ब्लड निकाला जाएगा। अब ब्लड निकालने के बाद ब्लड के अंदर अलग अलग आपके वो है, क्या कहते हैं, सेल्स होते हैं। तो इसमें से व्हाइट ब्लड सेल्स को अलग किया जाएगा। अब व्हाइट ब्लड सेल्स में से भी आपके जो टी सेल्स है उसको फर्दर सेग्रीगेट किया जाएगा। उसको जेनेटिकली थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं लैब के अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे सो दैट ये कैंसर सेल को आइडेंटिफाई करके मार सके। सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट कार्ड थेरेपी में, मेरे खुद की बॉडी से क्या लिया, ब्लड लिया, इसमें से व्हाइट ब्लड सेल निकाले, व्हाइट ब्लड सेल में से टी सेल निकाले, और ये टी सेल इनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम जो लैब्स है उसमें सफिशिएंट नंबर में ग्रो करते हैं और फिर से इसे बॉडी में इंड्यूस करते हैं। अब इससे दो तीन फायदे हैं। फायदा नंबर वन, देखो, बिकॉज दीज आर पार्ट ऑफ माई ओन बॉडी, सो देर इज अ वेरी लिटिल चांस दैट बॉडी कैन रेजिस्ट इट। अदरवाइज अगर आप कोई भी बाहर से पैथोजन वगैरह या कुछ भी ऐड करते हो, जैसे मान लो कई बार होता है ना कि हम इंजेक्शंस लगाने के लिए कुछ कैरियर्स का यूज करते हैं। अगर कुछ भी ऐसा किया हमने, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द एफिकेसी ऑफ मेडिसिन इज वेरी लिटिल। क्या हो जाती है, जो आपकी मेडिसिन की एफिकेसी है वो कम हो जाती है। अब क्योंकि ये मेरी ही बॉडी के सेल्स हैं, तो मेरी बॉडी इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस बहुत कम देगी, बहुत कम। तो इफेक्टिविटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी। अब क्योंकि ये मेरी ही बॉडी सेल से बने हैं, तो इट विल प्रोवाइड मी अ पर्सनलाइज्ड केयर, कि भाई आप मेरे अकॉर्डिंगली चीजों को एडजस्ट कर पाएंगे, मेरी बॉडी के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट होगा। अब ऐसा नहीं कि वन साइज फिट ऑल पॉलिसी है कि फीवर है तो सभी को डोलो दे दी, ऐसा नहीं होगा। मतलब मेरी बॉडी के सेल्स हैं तो मेरी बॉडी के अकॉर्डिंगली ही वो एडजस्ट करेंगे। तो वो चीज आपको देखने को मिलती है। तो कार्ड थेरेपी में ये दो मेजर बेनिफिट हैं, बट कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे सम टाइम अगर ये जो आपके जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल्स हेल्दी सेल्स को टारगेट करने लग गए, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम का एक मेजर खतरा रहता है। एंड इन दैट केस आई विल से कि मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज नो ट्रीटमेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम। सो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का एक खतरा रहता है। दूसरी प्रॉब्लम, इट इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट एवरी फॉर्म ऑफ कैंसर। ल्यूकीमिया के अगेंस्ट इट इज वेल एंड गुड, बट सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर जैसे लंग कैंसर एंड मेनी मोर थिंग्स, उनके अगेंस्ट उतना इफेक्टिव नहीं है ये। तो ये प्रॉब्लम आ गई दूसरी। तीसरी प्रॉब्लम जो कार्ड थेरेपी है या इम्यूनोथेरेपी है, इसमें कॉस्ट भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है, नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट।
ठीक है, बड़े बड़े अंबानी अडानी कैन अफोर्ड इट, बट नॉट एवरीवन। मतलब इंडिया में तो शायद ये अगर मिलती भी होगी तो टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट में मिलती होगी, नॉट एवरी इंस्टीट्यूट इज हैविंग दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इफ वी टॉक अबाउट हेयर, तो इम्यूनोथेरेपी काफी अच्छी है बिकॉज ये एक टारगेटेड ट्रीटमेंट आपको ऑफर करती है एज कंपेयर टू द नॉर्मल ट्रीटमेंट। कीमोथेरेपी में क्या होता है कि हेल्दी और जो नॉन हेल्दी सेल है दोनों के ऊपर अटैक करती है, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो समटाइम ये कैंसर के स्प्रेड को और ज्यादा एक्सेलरेट कर देता है। सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वी ट्राई टू फाइंड अदर ऑल्टरनेटिव्स। तो वो चीज हम देख रहे हैं यहाँ पे। अब CAR थेरेपी का जो पूरा नाम है वो है कैमरिक एंटीजन रिसेप्टर टी थेरेपी। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस एंड रेस्ट आई हैव टोल्ड यू। चैलेंजेस भी बता दिए, हाउ इट वर्क्स वो भी बता दिया है, एंड मेजर जो इसके पॉइंट्स थे दैट वी हैव डिस्कस्ड। नाउ द सेकंड थिंग, सेकंड आर्टिकल, do new schemes ahead of election amounts to voter bribes? Ab, you might be aware about the government always focus about direct benefit transfer. Means post 2014, we believe that paying directly into the accounts of beneficiary is benefited much as compared to any other part. मतलब कहने का ये है कि भाई इंडिया में ज्यादातर हम स्कीम्स जो लॉन्च करते हैं ना उसमें करप्शंस देखने को मिलती है। लाइक पीडीएस स्कीम में अक्सर आप देखते हैं द क्वालिटी ऑफ व्हीट राइस दे आर नॉट अप टू द मार्क। समटाइम देयर इज लाइक कि बीच में करप्शन होगी कि भी 100 किलो अनाज आया था, ओनली 50 kg वॉज देयर, मतलब 50 किलो ओपन मार्केट में बेच दिया। तो दीज सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। सो गवर्नमेंट समटाइम प्रेफर कि वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करे। चलो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी ठीक है इन केस इफ यू आर टारगेटिंग द मोस्ट वनरेबल सेक्शन। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है तब जब इलेक्शन से जस्ट पहले ऐसी स्कीम्स को लॉन्च किया जाता है, बिकॉज समहाउ वी कैन से इट इज अ पार्ट ऑफ मैन्युपुलेटिंग द वोटर, कि भाई उसके माइंडसेट को मैन्युपुलेट करने का ही काम कर रही है। तो अभी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हुए थे आपके महाराष्ट्र के, एंड यहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस वुमेन्स के लिए और कुछ इनकम स्पेसिफिक ब्रैकेट्स के लिए लॉन्च की। अब जब ये लॉन्च की तो इससे अभी अगर आप इलेक्शन रिजल्ट देखें तो कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स और लाइक क्रिटिक्स ये कहते हैं कि इट इज बिकॉज ऑफ दीज स्कीम्स द गवर्नमेंट वाज एबल टू फेच गुड नंबर ऑफ वोट्स। तो यहां पर क्या ये आपकी जो स्कीम्स है ये एथिकल है इंप्लीमेंट करनी? तो एक तो कंसर्न हमारा ये है। दूसरी चीज, क्या हमें शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए या लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, इसको समझना होगा। देखो इंडियन सोसाइटी के जो कोर इश्यूज हैं, कोर इशू क्या है? एक एजुकेशन, हेल्थ, और तीसरा आपका एम्प्लॉयमेंट। तो मतलब तीन मेजर इशू हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचे तो इकोनॉमी में कैपिटल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि आप स्कूल्स बनाओ, कॉलेजेस बनाओ, हेल्थ केयर के ऊपर इन्वेस्ट करो, आप जॉब क्रिएशन के लिए कुछ कहीं ना कहीं कैपिटल इन्वेस्टमेंट करो। तो दैट शुड बी योर लाइक प्राइम ऑब्जेक्टिव। बट सम टाइम अब आप देखते हैं कि इलेक्शंस में जीतने के लिए समटाइम द पीपल एज वेल एज द पॉलिटिकल पार्टी थिंक्स नैरोली। अब नैरोली कैसे? वो शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए डायरेक्ट बेनिफिट दे देते हैं, यानी कैश दे देते हैं वोटर्स को। अब इससे वोट तो मिल जाता है, बट कहीं ना कहीं जो लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस सोसाइटी की होनी चाहिए वो साइडलाइन हो जाती है। बिकॉज देखो, जैसे आपके और मेरे घर का एक लिमिटेड बजट होता है, ऐसे ही सरकार का यानी स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट का भी एक लिमिटेड बजट होता है। इफ यू आर डाइवर्टिंग सम मनी टू सम अननेसेसरी थिंग्स, तो might be a possibility you have to compromise on front of some of the most important things, some of the most vital things. Try to understand this कि देखो मान लीजिए मेरे पास 1,000 रुपए पड़े हैं। अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं उसके कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दूं, यानी लाइक मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपया पड़ा है, 1 लाख रुपए की मैं या तो एफडी करवा दूं या मैं एक चमचमाता ब्रांड न्यू आईफोन ले लूं। तो आईफोन लूंगा, ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है कि ठीक है स्टेटस इंक्रीज होगा एंड एवरीथिंग लाइक दैट। बट अगर मैं उस 1 लाख रुपए को एफडी में, गोल्ड में
या स्टॉक मार्केट में लगाता हूं, तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ये मेरी इनकम क्रिएशन या वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करे। तो ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आप वेल्थ क्रिएशन के ऊपर फोकस करो रादर देन शॉर्ट टर्म गोल्स के। ठीक है, कई बार शॉर्ट टर्म गोल्स भी ठीक रहते हैं जब आपको बहुत वनरेबल सेक्शन को अपलिफ्ट करना हो, बट नॉट ऑलवेज। अगर जैसे शादी होने वाली है, आपको अपनी वाइफ के लिए अगर कोई गिफ्ट लेना है, उसमें आईफोन ले लिया, दैट इज वेल एंड गुड, ठीक है, वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से ठीक है। बट एट द सेम टाइम आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को इसे गिफ्ट कर रहे हो, माइट बी अ केस जहां पर आपकी ये इन्वेस्टमेंट गलत साबित हो सके। तो यहां पर आपको समझना होगा कि लॉन्ग टर्म वर्सेस कैश ट्रांसफर में सबसे बड़ी बात आ जाती है कि क्या हमें इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन चाहिए, या हमें सस्टेनेबल सोल्यूशन चाहिए। तो बजट के ऊपर स्ट्रेन ना आ रहा हो तो उन उन केसेस में ये चीजें ठीक है। बट अगर गवर्नमेंट का बजट ही लिमिटेड है, तो इन दैट केस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से बेटर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे रोजमर्रा का खर्चा जिसका कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो होता है जहां पर गवर्नमेंट को उससे रिटर्न मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हाईवे बनाता हूं, हाईवे से ट्रेड बूस्ट होगी, ट्रेड से रेवेन्यू जनरेट होगा, तो इससे गवर्नमेंट को फायदा होगा। या मैं कोई पीएसयू स्टार्ट करता हूं, वो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, और उससे भी इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी, प्लस गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगा। तो वैसी चीजों के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल आता है, एथिकल सवाल, कि क्या इलेक्शन से जस्ट पहले ये स्कीम इंट्रोड्यूस करना ठीक था। तो इन दैट केस अगर हम बात करें तो ये इलेक्शन से पहले जस्ट एक इलेक्शन टैक्टिक्स है, जनरल वेलफेयर की आप ये कह सकते हो कि रिफॉर्म की जेन्युइन कोशिश नहीं है। ऐसा कुछ थिंकर्स का बिलीफ है कि लाइक इफ यू वांट टू गो फॉर दिस, यू माइट हैव स्टार्टेड दिस प्रोग्राम वे बिफोर इलेक्शन। व्हाई जस्ट बिफोर इलेक्शन? यू आर, द टाइमिंग इज सो नियर टू द इलेक्शन, व्हाई इज इट सो? कि भाई आप वोटर्स को दिखा सके कि भाई हमने आपके लिए क्या किया है। 5 साल में आपने, चाहे 2.5 साल में, 3 साल में आपने कुछ ना किया हो, बट लास्ट मोमेंट पे आके जब ये स्कीम्स लाई जाती है तो कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस करती है वोटर्स को। एंड जो मेजर इश्यूज है, कई बार जो वोटर्स है वो उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। तो वो एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तो कहते हैं कि क्या इसकी एफिकेसी है कोई? देखो, इफेक्टिवनेस कैश ट्रांसफर की कुछ केसेस में देखी गई है। जैसे अगर मैं बात करूं तो जहां पर वुमेन्स के पास ये पैसा जाता है, तो मोस्टली वुमेन्स इन पैसों का ठीक से इस्तेमाल करती है। बट अगर मेल के पास पैसा जाता है तो देर आर सम इश्यूज, मतलब सब्सटेंस अब्यूज का या अल्कोहल का ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं, गैम्बलिंग जैसे इश्यूज देखने को मिलते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह के केसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो वो चीजें आपको देखने को मिली है। बट अगर बात की जाए कैश ट्रांसफर की, तो ये इंपावर करने की बात कर रहा है वुमेन्स को, कि क्योंकि मेजरली जो स्कीम्स है उसमें वुमेन सेंट्रिक आपकी स्कीम है कि महिलाओं को आप क्या कर रहे हैं, कैश प्रोवाइड कर रहे हैं। बट यहां पर हमें एक चीज के ऊपर और फोकस करना होगा, जस्ट नॉट द कैश, वी हैव टू फोकस अपॉन हाउ वी कैन इंपावर द फीमेल, या वुमेन्स को कैसे इंपावर कर सके। जैसे एक बहुत बढ़िया कोट है, लाइक आपको याद होगा, जैसे एक परिंदा एक पर से नहीं उड़ सकता, वैसे ही कोई भी सोसाइटी तब तक डेवलप नहीं हो सकती जब 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट सपोर्टिंग दैट। तो फीमेल का पार्टिसिपेशन स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंगली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधी पॉपुलेशन है वो हमारी। तो यहां पर कहा जा सकता है कि भाई थोड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि अगर प्रॉपर एजुकेशन ना हो तो मे बी इन पैसों का गलत इस्तेमाल हो जाए, उतना इफेक्टिव ना हो सके, फंड का ठीक से मैनेजमेंट ना हो सके, तो वो प्रॉब्लम आपको देखने को यहां पे मिल सकती है। तो एजुकेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब लीगल कंसर्न्स की बात की जाए, ऑल दो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक तो ये चीज ठीक है। क्यों? क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जो सेक्शन 123 है वो ब्राइबरी के बारे में बात करता है, मनी और बेनिफिट जिससे आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो इलेक्शंस के अंदर। बट ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के टाइम पे ही करता है। अगर उसके पहले और बाद में आपने कुछ किया है तो कहीं ना कहीं आप इस सेक्शन को इन्वोक नहीं करते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, इवन एस सुब्रमण्यम बालाजी के केस में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, फ्रीबीज आपके इलेक्शन प्रोसेस को डिस्टॉर्ट करती है, बट ये करप्ट प्रैक्टिसेस के कैटेगरी में नहीं आती है करंट लॉज के अकॉर्डिंगली। अगर यहां पर
इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस में भी ये कहा गया है कि भाई आप मतलब इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि आप अपनी गाइडलाइंस में ये लाइए कि भाई इलेक्शन मैनिफेस्टो में लोग ऐसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स की बात ना करें। तो दैट शुड बी द फोकस। इलेक्शन कमीशन ने इसे अपडेट किया नहीं है, तो अभी तक तो लीगल बुक्स में ये वैलिड है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, हमेशा फोकस करने की बात करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बट क्या ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड है? अब मेरी गवर्नमेंट पावर में नहीं है, मान लीजिए मैं पावर में नहीं हूं, अब मुझे इलेक्शन लड़ना है, बट सामने वाली जो गवर्नमेंट है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उसने कहा कि मैं 1 लाख रुपए हर एक को हर महीने प्रोवाइड करूंगा। एंड दे स्टार्टेड दिस कि 2-3 किस्तें इन्होंने यहां पर प्रोवाइड कर दी और इन्होंने इलेक्शन जीत भी लिया, इन्होंने इलेक्शन जीत भी लिया। तो यहां पर मेरे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड कहां पर है? सीधा सीधा आर्टिकल 14 का भी वायलेशन है। एंड इवन अगर हम बात करें जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसका भी मिसयूज है अंडर आर्टिकल 162 जो पावर गिवन है। एंड इवन पब्लिक फंड के बारे में जहां पर आप आर्टिकल 266 क्लॉज 3 में पढ़ते हैं उसका भी वायलेशन है। तो ये प्रॉब्लम है अपने लिए, बट स्टिल यहां पर वे फॉरवर्ड यही हो सकता है कि वी हैव टू हैव अ कंक्रीट पॉलिसी, लाइक एक फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी होनी चाहिए कि अगले 10-20-30 सालों में आप स्टेट या लाइक सेंटर को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो, देश को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो। मतलब ठीक है, आप एक फिजिबल इकोनॉमिक प्लान निकालिए, पॉपुलिस्ट मेजर्स थोड़े बहुत हो तो चलेंगे, बट मेक श्योर आप बजट को ओवरबर्डन ना करो उनके साथ। आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर मेजर फोकस होना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप एक्सपैंड कीजिए। टारगेटेड फ्रीबीज कुछ हद तक ठीक है वनरेबल सेक्शन के केस में, बट हर जगह ये अलाउड नहीं होना चाहिए, ये चीज अलाउ नहीं होनी चाहिए। आपको समझना होगा कि एक फर्क है बिटवीन व्हाट इज नोन एज सब्सिडीज एंड व्हाट इज नोन एज फ्रीबीज। सब्सिडीज क्या होता है कि आप वनरेबल सेक्शन को कुछ चीजें थोड़े सस्ते दामों पे दे रहे हो, जैसे पीडीएस स्कीम के अंडर हम अनाज सस्ते दामों पे इवन फ्री भी दे रहे हैं। अब वो उन लोगों को दे रहे हैं जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में सबसे पीछे आते हैं। बट इन केस आप सभी को कह दे कि भाई 200 यूनिट बिजली फ्री या पानी फ्री, दैट इज समवेयर आप अपने रेवेन्यू सोर्सेज को श्रिंक कर रहे हो एंड इससे आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी फर्क पड़ेगा एंड लॉन्ग टर्म में स्टेट की फाइनेंशियल हेल्थ खराब हो सकती है। अब लास्ट में ये कहा जाता है कि वोटर को भी अवेयर होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए जाना है या लॉन्ग टर्म कहीं ना कहीं बेनिफिट के लिए जाना है। तो उस चीज को आपको ये समझना होगा, वोटर्स को अवेयर करवाना होगा। तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन की ये ड्यूटी बनती है कि इस तरह के अवेयरनेस कैंपेन को रन करें। तो दिस वाज द आर्टिकल। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट आर्टिकल। दिल्ली की सीएम आतिशी माथुर ने ये कहा कि भाई सॉरी आतिशी जी ने ये कहा, नॉट आतिशी माथुर, आतिशी जी ने ये कहा कि वो तैयार है सेंटर की आयुष्मान भारत स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए। अब देखो स्कीम्स दो तरह की होती है, एक होती है सेंटर सेक्टर स्कीम, एक होती है सेंट्री स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेक्टर स्कीम में सारा पैसा सेंटर देती है, स्पॉन्सर में देयर इज डिवीजन 60-40 या 90-10 या और भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू स्कीम वो वेरी कर सकता है। अब ये जो स्कीम है ये स्पॉन्सर कैटेगरी में आती है, जिसमें 60% पैसा आपकी गवर्नमेंट देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 40% पैसा आपकी स्टेट गवर्नमेंट देगी, यानी यूनियन और इसके बीच में डिवाइडेड है। हिली स्टेट्स जो होती हैं क्योंकि उनके पास रेवेन्यू बहुत ज्यादा नहीं होता, तो उसके केस में ये 90-10 की रेशियो में आ जाता है। अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत स्कीम की बात की जाए तो इसमें 5 लाख तक की इंश्योरेंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उन फैमिलीज को जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो कंडक्ट किए थे 2011 में, उसके अकॉर्डिंगली एलिजिबल होते हैं। मतलब यहां पर 5 लाख तक की इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि लगभग 40% जो हमारे पॉपुलेशन है इसको कवर करेगी। अब इसमें ना केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल यानी पब्लिक हॉस्पिटल, प्राइवेट इंपैनल्ड हॉस्पिटल भी है, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट कहीं पर भी जाके इलाज करवा सकते हो। द स्कीम इज कवरिंग 3 डे प्री एंड 15 डेज पोस्ट केयर, मतलब अगर इलाज होना है तो उससे 3 दिन पहले का जो भी खर्चा होगा और इलाज होने के 15 दिन बाद तक का जो भी खर्चा होगा, उन सबको ये कवर करती है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट पर्टिकुलरली यहां पे एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है
कि ये सभी पूरे देश में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं एम्पैनल्ड उन सबको कवर करती है एंड यहां पर ये कैशलेस बेनिफिट प्रोवाइड करती है। आपको जेब से एक पैसा नहीं देना है। सब लोग मतलब जो भी इसके एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उन सबको ये कैशलेस सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। अब यहां अगर हम बात करें तो कोई फैमिली साइज नहीं है। पहले क्या होता था कि फैमिली का साइज 4 कर रखा था, तो मदर फादर नहीं इंक्लूड हो पाते थे या कई बार बच्चे इंक्लूड नहीं हो पाते थे, तो वो प्रॉब्लम आती थी। अब इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए इन्होंने कह दिया कि भाई लाइक एवरीवन इज एलिजिबल। अब रिसेंटली अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मेजर काम किया कि जैसे जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो अक्सर बीमार पड़ते हैं, तो 70 से अबव जो भी एज ब्रैकेट के होंगे, इररिस्पेक्टिव वो किसी स्कीम में पहले कवर हो रहे थे या नहीं, उन सबको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। उसे एक्सपैंड कर दिया। अगर उनकी फैमिली के जो 5 लाख का पहले से कवर हो रखा है तो उस केस में एडिशनल 5 लाख का ये टॉप अप टाइप वर्क करेगा। तो दैट इज द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। बट इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल समटाइम इट इज सेड दैट कि गवर्नमेंट टाइमली पेमेंट नहीं करती है प्राइवेट सेक्टर की, तो जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर बहुत रिलेक्टेंट है कि दे वांट टू पार्टिसिपेट और नॉट। कई बार प्रॉब्लम वो देखने को मिलती है। कई बार ऐसा होता है सूडो सर्जरीज इन द सेंस कि पेशेंट को उस सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट बस जस्ट टू मेक श्योर कि भाई हॉस्पिटल के पास पैसा आ जाए। तो कुछ जगह पर ऐसे भी केसेस देखने को मिलते हैं। कई जगह पर घोस्ट बेनिफिशरीज की भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ऐसे बेनिफिशरीज जो पेपर पे एग्जिस्ट करते हैं बट एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी हमें इस स्कीम को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत पड़ेगी जिससे इसकी इफेक्टिविटी को और बेटर किया जा सके। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। आज के लेक्चर में इतना ही था। धन्यवाद।